औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू एजुकेशन। د شپږم اردو کې سبق نمبر 6 من سره صحت اور صفائی حاصلات تعلم دی سبق کے من حاصل ہوئی سبق تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ چې دې سبق پورا کېدو نور طلباء بعد د لاندې خبرو قابل شي نثر کو فهم کے ساتھ پڑھ کر سوالات کے جواب دے سکے چې نثر با سمجھ سره پڑھاو کی اور د سوالونو جوابونه به ورکړي غلط فقرات کو درست کر سکیں اور غلط فقرے بٹی کی عبارت نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے عبارت کم چې په نثر کې دغه به پڑھاو کی بدی کې موجود معلومات اور تصورات خیالات چلے هغه به د هغې نه راوباسي عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 75 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکے 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں عنوان اور د آغاز پر مدد سرا کم سے کم 175 الفاظ باندې مشتمل قصہ لکھی نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکے نثر منشا یعنی سبب داغے د سبب یعنی اسباب او مقصد په حوالے سرا پاغے باندې پوه شي او داغے درست اتار چڑھاؤ کمی اور زیاتیائی کی چیزوں کمی زیادی دے اور روانی سے پڑھ سکے اور روانی سے رشدی اغا پڑھاولے شي درخواست لکھ سکے درخواست لکھلے شي الفاظ کے انتخاب میں لغت کا استعمال کر سکے اور الفاظوں پر انتخاب کی لغت یعنی ڈکشنری استعمال ولے شي گروہی سرگرمی میں حصہ لے سکے گروپونو سرگرمیوں کی حصہ رکھتے شي اور اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکے او خپل ذمہ داریاں په ښه طریقې سره سرته رسولی شي خاص الفاظ موږ سره د دې سبق دی سرزنش ڈانٹنا برا بلا کہنا بیٹھک بیٹھنے کی جگہ گرد و غبار دھول مٹی حفظان صحت صحت کے اصول چاق و چوبند چست مضر صحت صحت کے لیے نقصان دہ افزائش بڑھوتری تعفن بدبو زین اور سرمد ابھی کرکٹ کھیل کے آئے ہیں زین اور سرمد وسلو بکڑی دی اور راغلی دی زین نے آتے ہی صابن سے ہاتھ دھوئے زین راتلو سرا صابن باندې لاسونه وینځل جبکہ سرمد بغیر ہاتھ دھوئے کانے کی میز کی طرف بڑھ گیا جبکہ سرمد چیرے بغیر لاسونه انځلی د خوراک میز طرف تا لاڑو باجی نے سرمد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا باجی د سرمد تبدی ردی ہوئی سرمد ہاتھ دھو کر آؤ سرزنش برا بلا کہنا یا ڈانٹنا سرمد ہاتھ دھو کر آؤ پھر کچھ کانا نو سرمد ته وی چې لاسونه وینځه او بیا ډوډۍ خوره دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں چې وګوره ستا لاسونه څومره ګنده شوي دي یہ سن کر سرمد نے توڑا منہ تو بنایا نو کله چې دا واورېدو نو سرمد ناراض جو خفه شو منہ بنانا ناراض ہونا محاورہ دا لیکن پھر ہاتھ دھونے چل دیا لیکن بے لاسونه چې وینځل باجی نے اسے شاباش دی باجی اگلے شاباش ورکو اور کہنے لگی او دته ہوئی یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں چې دا خبره خو موږ ټول داغه موږ ته پته ده کہ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے چې څه هم د خوراک څښاک نه مخکې موږ له لاسونه انځل پکار دي پھر اب ایسے بھول گئے نو بیا تا څنګه هیر کړو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے ہی سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے چې صفائی خیال ساتلو سره زموږ صحت چې ښه کېږي اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے که چرته په ګنده لاسونو باندې خوراک وخوړلی شي تو جراثیم کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں تو جراثیم په خوراک کی شاملیږي اس طرح ہم بیمار ہو سکتے ہیں او داسې موږ ناجوړه کېدی شو زین جو یہ سب باتیں خاموشی سے سن رہا تھا زین کوم چې دا ټولې خبرې خاموشی سره اورېدې کہنے لگا نو هغه ووی باجی بہت سے بچے اس بات کا خیال نہیں رکھتے چې باجی ډیر واړه چې د دې خبرې خیال نه ساتي میرا خیال ہے زما خیال ہے کہ انہیں صحت و صفائی کے باہمی تعلق کے بارے میں زیادہ علم نہیں چې هغو دا صحت و صفائی په باره کې زیات علم نشته دی باہمی یعنی آفس کا چې د صحت و صفائی خپلو کې څه تعلق دی هغې باره کې هغو ته علم نشتی باجی آپ کو چاہیے باجی تا ته پکار دی کہ اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتائے چې خپل ملګرو ته د دې په باره کې ووایي زین باجی
क्या ही अच्छा हो कि आप किसी दिन हम सब दोस्तों को सेहत व सफाई के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में तफसील से आगाह करें। नो ज़ेन ته وی چې باجي دا بخنی چې ته یو ورځ زما ټولو ملګرو ته د صحت و صفایي چې خپلو کې کم تعلق دی د هغې په باره کې تفصیلا هغو خبردار کړي، هغو پوه کړي، آگاه کرنا، واقف کرنا، خبردار کرنا। باهمی आपस का बाजी ने हामी भर ली। हामी भरना इकरार करना, वादा करना। नो बाजी چې वादा وکړه तो ये पाया दा फैसला हुआ कि छुट्टी के रोज़ गली के सब बच्चे ज़ैन और सरमद के घर इकट्ठे होंगे। چې د چټۍ په ورځ باندې به د کوڅې ټول واړه ज़ैन او د सरमद په کور کې راوځي کېږي। बाजी उन्हें सेहत और सफाई की अहमियत बताएंगे और बाजी शिदा अगोतवर सेहत और सफाई पर अहमियत पर बारे की वाई और उनके सवालों के जवाब भी देंगे और दागोई द सवालों जवाब न बम वर्कई। ज़ैन और सरमद ने अपने तमाम दोस्तों को इस महफिल के बारे में बताया। ज़ैन और सरमद खपल टोल मलगरो ता द दे महफिल पर बारे की हुई। महफिल यानी मजलिस। सब खुशी खुशी इस अनोखी महफिल में शरीक होने के लिए रजामंद हो गए। टोल पर खुशाले खुशाले सरा अनोखी नाशना ये नाशना महफिल की द शरीकेदो द पारा राजी शु। छुट्टी के दिन सुबह 10 बजे सब बच्चे ज़ैन और सरमद के घर बैठक में मौजूद थे। द जुटे परोज़ बांदी सहल 10 बजे टोल माशुमान द ज़ैन और द सरमद पकोर की बैठक की मौजूद। बैठक बैठने की जगह। बाजी ने उन्हें खुशामदीद कहा। बाजी अगोदा खुशामदीद हुई और बाकायदा तौर पर बातचीत का आगाज़ किया और बाकायदा खबर आगाज़ को। बच्चे बहुत पुरजोश थे, पुरजोश जोश से भरे वाले चीज़ें द जोश न डकूँ पुरजोश हो। बाजी हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है। बाजी ज़मंग द जिस्म दन्ने निज़ाम द यो मशीन पशंदगी कार कई। ये एक वक्त में मुख्तलिफ अफ़ाल सरंजाम देता है। दा पे यो वक्त के मुख्तलिफ कारों गई। जब मुज़रिसियात जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते कल द सियात तपार नुकसानदेह जरासीम ज़मंग जिस्म त दाखिलेगी। मुज़रिसियात सेहत के लिए नुकसानदेह तो वो उन अफ़ाल में रुकावट डालते हैं। न अगो पदी कारून की खलल वर्जी रुकावट खलल जिससे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। चिबागे सर मंग द मुख्तलिफ़ बीमारियाँ नुख्कार की हो। अगर हमारा जिस्म लिबास और माहौल गंदा होगा तो चरत ज़मंग जिस्म लिबास यानी कपड़े और माहौल गंदई तो मुज़रिसियात जरासीमी की अफजाइश होगी। नौ सेहत का नुकसान वर्कउन की जरासीम बाज़ियाती की अफजाइश बढ़ोतरी और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हम पर हमलावर होंगी और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ने बांधी हमला की। आयशा बाजी हमें अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए। आयशा बाजी मंगला दखपल जिस्मानी यानी बदनी सफाई ख्याल संग सातल पकार दी। बाजी हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। बाजी मंगला रोज़ाना लांबल पकार दी ताकि हमारे जिस्म से मेल कुचेल उतर जाए। जो ज़मंग दे जिस्म ना खीरे लर्शी मेल कुचेल गंदगी। हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने नाखून तराशने चाहिए। हफ्ते की यो पेरा खामखा अखपल नुकुना कटकावल पकार दी। इस तरह नाखूनों में मेल जमा नहीं होगा। दसिबा पनुकुन की गंदगी ने जमा की। अगर नाखूनों में मेल जमा हो जाए कचरता पनुकुन की गंदगी जमशी तो ये खाने के साथ हमारे मैदे में चला जाता है। दादा खुराक सरा ज़मंग मैदी तजी और मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनता है और दागी ने मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जोड़ेगी। जाजिब बाजी साफ लिबास और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जाजिब बाजी द सफ़ा कपड़ों और द सेहत खपलों की से ताल्लुक़ थे। बाजी रोज़ाना साफ लिबास पहनने से हम पसीने और गर्द गुबार की वजह से पैदा होने वाले जरासीम से महफूज हो जाते हैं। बाजी रोज़ाना सफ़ा सुथरा कपड़े अगुस्तो सरा मंग द खली और द दुड़ू द वजना चिकम पैदा कीदुन की जरासीम दी दागे न महफूज पाती के शो। हमें खुद भी खुशगवार कैफियत का एहसास होता है। अमंग तपख्पल हम दखा हालत एहसास की खुशगवार कैफियत अच्छी हालत। इस ज़मन में हमें यही बात भी समझनी चाहिए। इस ज़मन मजमून पदी मजमून के मगला दा खबर हम याद सातल पकार दी के लिबास का साफ़ होना ज़रूरी है। चे द कपड़ों सफ़ा सफ़ा के चे सफ़ा कपड़े शेगा ज़रूरी दी। क़ीमती होना नहीं क़ीमती शेदे अगर नदी पकार खुद सफ़ा पकार दी। जाहिदा बाजी क्या गली और महल्ले की सफाई का हमारी सेहत के साथ कोई ताल्लुक़ है। बाजी जाहिदा बाजी
د کوڅې او د محلې د صفائی زمونږ د سیاست سره څه تعلق شته دی बाजी। कूड़े क्रिकेट के ढेर और गलियों में खड़ा गंदा पानी जरासीम का आमाजगाह होता है। बाजू د وی چې خزله د خزلې ډیری او په کوڅو کې ولاړې اوبو د جراثیمو د اوسیدو ځای دی، आमाजगाह रहने की जगह। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए। په دې وجه موږ له خپل ګیر چاپیره صفائی خیال ساتل پکار دی। हमें कूड़ा क्रिकेट गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। मंगला खजला पे कुसों की गौजौल नहीं पकार ताकि नालियाँ और गटर बंद न हो। चिनालई और द नालो लारी बंदीगी न और गलियों में पानी खड़ा हो और न गलियों में पानी खड़ा हो और न पुकुसों की उबो उधरेगी। गली महल्ले में कूड़ा फेंकने से ताफुन और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। पुकुसा और महल्ले की गंदगी खुरावलू सारा बदबू और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ निखोरेगी। ताफुन बदबू सिर्फ गली महल्ले ही को नहीं बल्कि अपने स्कूल खेल के मैदानों और तफरीगाहों को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। सिर्फ खपल कोसा और महल्ला न बल्कि खपल स्कूलों दलो व मैदानों और द सैर व तफरीह ज़ैन हम सफ़ा सातल पकार दी। ज़ारा पिछले साल हमारे इलाके में डेंगू बुखार फैला था, इसकी क्या वजह थी? ज़ारा ला दिखाली ज़मन पा इलाक़े के डेंगी तब अचरेगा ख़वारशे हुआ ददी से वजह दा बाजी। घरों की कियारी और मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी खड़ा रहने की वजह से डेंगू मच्छर पैदा होता है। चिदकूरुनो प बागीचों के और प मुख्तलिफ़ ज़ैनों बांधी ओबो इशारे दो वजना डेंगू मच्छर पैदा की जो डेंगू बुखार का बायस बनता है। कुमचे डेंगू तवा जोड़ई सिर्फ गंदे पानी ही से नहीं, सिर्फ द गंदा उबो न बल्कि साफ पानी के खड़ा रहने से भी डेंगू जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बल्कि सफा उबो हम पयोज़ बांधे उधरेदो सरा डेंगू पशानता की बीमारियाँ ने पैदा की। नासर बाजी हम अपने दांतों की सफाई का बेहतर अंदाज में किस तरह ख्याल रख सकते हैं? नासर बाजी मंगा दखपल द गाखुनो सफाई पखा अंदाज की संग ख्याल सातले शू। बाजी दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट, मंजन और मिसवाक इस्तेमाल करें। द गाखुनो द सफाई द पारा टूथपेस्ट, पाउडर और मिसवाक चिड़ेगा इस्तेमाल हुई। मिसवाक करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और मिसवाक कौल चिड़े सुन्नत नबवी हम दी। दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए। परवाज़ की 2 पेरे गाखुना सफा कौल पकार दी। कुछ भी खाए इसके बाद कुल्ली ज़रूर करें। जिसो मुखरी दागिन सो गड़गड़ी ज़रूर करें ताकि खुराक के ज़रात दांतों में पन से न रह जाए। जब खुराक ज़रात पगाखुन की अनखती पाती नशी। सरमद बाजी क्या दांतों की सफाई न करने से भी बीमारी लग सकती है? जब गाखुनों पर सफाई न कौलो सर हम बीमारियाँ नहीं लगी देशी। बाजी हाँ क्यों नहीं बाजी अव्वल नो इससे मसूड़े और दांत ख़राब हो सकते हैं। पदीसर उरे गाखुना ख़राब देशी। इसके अलावा मुँह से बदबू आ सकती है और दीन अलावा दखले न बदबूई चीज़ें अगरात लेशी। कोई हमारे करीब बैठना और हमसे बात करना पसंद न करेगा। सुखबिया जमन सर नज़दीक ही नहीं न और जमन सरबा खबरी कौल न ख्वाही। अच्छा बताइए कि आप में से कौन दिन में 2 बार दांत साफ करता है? नवीदा माता हुए बता सकी सो परवज़ की 2 पेरे गाखुना सफा की। सब बच्चों ने हाथ बुलंद किया। लटोल वड़ों पर लाश उछत को। राशिद बाजी मुझे भी कुछ बताना है। राशिद बाजी जोम सवाए बाजी जी ज़रूर बताए बाजी जी ज़रूर उवाया। राशिद मेरी अम्मी कहती है ज़माम रुवाई के दिन में 5 बार वज़ू करने से हमारे हाथ पाँव नाक गला कान सब साफ़ हो जाते हैं। ज़माम रुवाई चे बरस की 15 पेरे अवदस कवल सरा जमंग लासुना खपी पोज़ा मरई वग टूल चिकम दे सफा की। बाजी ने राशिद को शाबाश दी। बाजी राशिदा दाद वर को उन्होंने कहा आगे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे अतहुर शत्रुल ईमान। सही बुखारी द हदीस दे यानी सफाई ईमान का हिस्सा है। जो सफाई द ईमान हिस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी पाकीज़ा रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा पखपल हम सफाई सुथराई ख्याल सातो पखपल ब सफ़ाओ और साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाते थे और सफ़ा खलक पे ख्वाओ। बच्चों सफाई और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। वड़ो सफाई और सेहत पलों के जौहर ताल्लुक़ है। सफाई की आदत अपनाने वाला चाक़ चौबन और खुश व खरम रहता है। जो सफाई आदत पलवल वाला चुस्त और खुशहाल
चाकू चौबंद चुस्त खुश व खुरम खुश। जो लोग खुद भी साफ़ सुथरे रहते, कम खलक च बखपलम सफ़ा सुथरई और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखते हैं और द खपल गिर चपेरा माहौल द सफाई ख्याल हम साथी, उनकी सेहत दूसरों से बेहतर होती है। दागो सेहत द नूरना खई, इस तरह वो अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं और पदी तरीके से वो खपल कारुना पख तरीके से सर रसोले शी। जैन और सरमत के साथ ही बहुत खुश थे। जैन और सरमत मलगरी डी ज़्यादा खुशहाल हो। उन्होंने आज सेहत व सफाई से मुतालिक बहुत सी बातें सीखी थी। अगों ने सेहत व सफाई मुतालिक ढेर खबरें इज़्दा करी हुई। सब ने बाजी से वादा किया, टोलो बाजी सर वादा उकड़ा कि वो इन अच्छी बातों पर हमेशा अमल करेंगे। इन दुबा पदे खो खबरों बंदी हमेशा अमल की। इसमें अमल के अहतमाम पर बच्चों की तवाज़ो मज़ेदार खाने से की गई। ददी महफल द मजलिस पर अख्ताम बांधी द वड़ो मेहमान नवाजी په ښکلي خوراک سره وکړای شوه، په مزیدار मज़े वाला खुराकुन सर उकड़ाई शुआ। तवाज़ो मेहमान नवाजी, सब ने बारी बारी अपने हाथ धोए, टोलो पर नंबर नंबर फल्ला सुने विंजल और फिर मज़ा ले लेकर खाना खाया और बे मज़ो मज़ो खुराक उखड़। आइए मज़ीद जाने। हर साल 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाए जाते हैं। हर काली 7 अप्रैल बांदी आलमी यौम सेहत چې دی هغه مناولی کېږي، یعنې ټول ورلډ کې عالمي په ټول ورلډ کې یوم صحت چې دی هغه مناولی کېږي په 7 اپریل باندې.